and I would attend the performances, cold winter evenings in Delhi, the Qawwali, the Shairi, the Shero Shairi, the Ghazal programs. There was music, dance, culinary events. And then Didi also filled me in. She told me that they did film and theatre festivals. There was even art exhibitions. And then just a few years later, you added on and you started student exchange programs. Again, there I have a little memory because again there I was roped in by Tina Didi is my sister, my elder sister. And yes, she orders me and I turn up. So then I got involved in the student exchange programs where children were taken for a few weeks to a new country to experience a new home, a new life, a new culture. And then a few years later, you added Virsa, the online lessons for schools in remote areas. And the part that I find most fascinating about it is that you had eminent artists, stalwarts in their fields, in the performing arts, giving lessons to children in schools so far away. Think about it, ये privilege हमें बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े schools में भी नहीं मिलता. Where do you have Rakesh Chaurasia ji teaching the Bansuri to children in the biggest school in Mumbai? Doesn't happen. But it was available to the children all the way through Virsa. And then, well, the years have flown, the numbers have grown, and today, apparently, there are more than 22,000 schools and colleges reached through their program. And they have students. बहुत बड़ा number है 22,000 and students in more than 65 countries. Imagine this. At this moment, there could be a little girl in Uzbekistan learning Bharatnatyam, or in Kazakhstan learning Kathak. Quite amazing. You've grown strength to strength, and today, wow. The listing at the National Stock Exchange, a big landmark event, and I'm very happy, proud and privileged to be here. भाई National Stock Exchange का नाम तो सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए. Thank you. Thanks to Roots to Roots. So I wish you many, many such great successes in the years to come. Wish you all the very best and God bless you. I'm very proud of you. Many, many congratulations, Roots to Roots. Event, such a wonderful concept. क्या कहना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन दिन है. ये पहला NPO है सोशल जो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करता है और आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगा. दैट मीन्स दे हैव रेज्ड बिग फंड्स, दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड एंड नाउ दे कैन फंक्शन बिगर, बेटर, ब्रिंग मोर music, dance into the lives of children in remote areas, schools in remote areas. So they're reaching out to our little young children. And ये privilege actually मेरे को जो कमाल का इसमें और लगता है, of course ऑनलाइन से आप कहीं कहीं मतलब there is no boundary, आप कहीं भी reach out कर सकते हैं. जैसे when I realized कि actually हाँ ये हो सकता है, उज़्बेकिस्तान में कोई बेटी है वो भरतनाट्यम अभी सीख रही है रूट्स टू रूट्स के द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा. कोई और कजाकिस्तान में तबला सीख रहा है. So you are bringing this beautiful culture to young people. And masters, eminent artists, वो भी classes देते हैं online इनके साथ. And that education, that seek which you get, हमारे बड़े बड़े schools यहाँ पर जो होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता ये privilege. So it's wonderful. I mean, I hope this organization grows and grows, and we also realize कि हम सिर्फ बच्चों को pressurize academics में ना करें, उन्हें जो दिल करता है वो करें. स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, प्लीज बच्चों को करने दीजिए. खूबसूरत बच्चे बनेंगे और शांत मन हो जाएगा. मैम पहले के दौर में इतना स्कोप नहीं था, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे. वो दौर और ये दौर में काफी चेंजेस आए. चेंजेस को आप किस तरीके से? वही, आई थिंक दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट
one for Roots to Roots and two for NSE, क्योंकि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये जो उन्होंने शुरू किया है, आई थिंक ये उसकी शुरुआत है. सो more NGOs, more NPOs can come forward and they can expand their work. Or NGOs, NPOs, as we know, they do something which is good for society. तो वो काम उसे फंडिंग मिले, उसे मसल मिले कि वो जाके और बड़ा काम कर सके. इससे आई थिंक इट विल एनरिच आवर नेशन. मैम अगर आईपीएल की बात करूँ तो आईपीएल पे आ गए आप? यस, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड दिस ईयर? काफी अच्छा खेल रही है टीम. और आज भी मैच है, इसकी Yes. प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहे हैं. एक तो आईपीएल इज ऑलवेज एक्साइटिंग यस, फॉर एवरीबडी. हम सब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं कि आज क्या होगा मैच में. दिल धड़कता है जब अपनी टीम को देखते हैं खेलते हुए. प्रार्थना करते हैं एंड वी होप दैट वी डू वेरी वेल. कि क्या इस साल चैंपियन बन जाए. इसकी मैं आपसे भी कहूंगी भाई, अगर आप थोड़ी सी भगवान से ऐसे बोल दें जरा कि उनको आशीर्वाद दे दो. आज जीतनी तो टेबल टॉपर जीतनी. अरे वाह. वही नहीं, वो हमको एंड तक जाना है, तो वहाँ पर एंड पे टॉप पे हो तो कमाल हो जाए. एंड ऑफ कोर्स आईपीएल इज वेरी एक्साइटिंग. बहुत सारी टीम्स हैं जिनके बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन. आई मीन वी सॉ हैदराबाद मेक 277. मतलब वो स्कोर देख के तो मैं लाइक हम इसको कब बीट कर सकते हैं. इट्स एन मतलब माइंड बॉगलिंग गेम. सो यस. आप शाहरुख सर के साथ भी मतलब स्टेडियम में रहते, तो उनका फीलिंग कैसा रहता है? नहीं वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत टेंशन में होते हैं सब. और वो और टेंशन में होता है, और अगर टीम नहीं अच्छा खेल रही है तो वो मुझे डांटते हैं. मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ. हम स्टैंड में खड़े हैं, मुझे बोले ये बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, दे आर नॉट बॉलिंग टू द फील्डिंग पोजीशन. हम ले भैया मेरे को मत बताओ, आप टीम को बता दो. सो या इट्स वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू वॉच अ मैच विद. Yeah, I think that goes for a lot of owners. आप देखते होंगे सारे ओनर्स ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं पसीने में है. Yeah, but it's true. We all go through that. अरे वो जब आ रही होंगी, नजदीक आ रही होंगी, तब मैं बताऊंगी. अभी तो बहुत दूर है, अभी तो काम ही हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो स्वागत है रूट्स एंड लूट्स का. हमने आज इन्वेस्टिंग किया है सोशल एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में. ये कितना इम्पोर्टेंट था और ये कितना अलग है और कितनी जरूरी चीज़ है ये. आप लोग जानते हो, यू आर द फाउंडर्स, 20 years हो चुके हैं. क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जो एनजीओस थे इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड भी, उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो डोनेशन होते थे. या सीएसआर फंडिंग जो इंडिया में जैसे कुछ साल पहले शुरू हुई वो होती थी. अब उसके अंदर सबको एक इशू होता था कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, क्या फंडिंग जो जा रही है वो सही जगह जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. अब जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनी है इसमें ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि जो भी फंडिंग आप रेस कर रहे हैं उस फंडिंग को रेस करने के अंदर आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पारदर्शिता दिखानी होती है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है कि आप वो पैसा कितना ले रहे हैं, किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं और उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें उसको पीरियडिकली दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी दिखाना पड़ता है. तो उसके अंदर जो ये शक और शुबे की बात होती थी कि पैसा मिसयूटिलाइज तो नहीं हो रहा, वो एक चीज़ खत्म हो गई. और दूसरा इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस को एंट्री मिली. ये एक एरिया अभी तक ऐसा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग सिर्फ पैसा लगा के उसको ग्रो करना चाहते थे. अब ये एक ऐसा एरिया मिल गया कि सोशली भी दे कैन इन्वेस्ट मनी और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसका इम्पैक्ट और वो सही जगह गया उसको देख पाते. और एनजीओस का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ उनको एक और सोर्स ऑफ फंडिंग मिला. और एनजीओ को एक और, जो एनजीओ अच्छा काम कर रही है, ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, फंड यूटिलाइजेशन सही कर रही है, उनको एक सोर्स मिल गया जहाँ से फंडिंग रेस कर सकते. ये मैम उसने काफ़ी रखी, काफ़ी चीज़ें एक्सटेंड कर दी. 20 साल हो चुके हैं इस एनजीओ को. कल्चर्स आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है इंडिया में. प्रभाव करके वैसे स्कूल्स हो, स्कूलों तक फ्री में आपको
ये चीज़ें पहुँचाता है। हम चाहते हैं किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट किया आप लोगों ने और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रोसेस जो है एक्चुअली रूट्स टू रूट्स का मतलब ही यही है, रास्ते अपनी जड़ों तक। हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने रूट्स के साथ अपनी जड़ों से कनेक्ट करें, और इसके लिए हमारा एक सफ़र जो था वो एक जर्नी में हमने लोगों के साथ बहुत फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, आर्ट फेस्टिवल्स और इस तरह के प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए। और फिर हमने जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के दौरान हमने ये फील किया कि स्कूल्स में बच्चों को जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और उसके बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती, ज़्यादातर पॉपुलर कल्चर ही प्रमोट हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम सब स्कूलों तक, बच्चों तक पहुंच सकें, और ये पॉसिबल डिजिटली हमने सोचा कि हो सकेगा, ताकि जो बच्चा रिमोटेस्ट एरिया में बैठा हुआ है हिंदुस्तान के, उसको जो है कि एक लेजेंड से, एक फेमस आर्टिस्ट से सीखने को मिले। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ना स्कूल को ना बच्चों को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि शुड बी जस्ट फ्री फॉर ऑल। तो तब से वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मैं क्या चाहता हूँ आज काफ़ी चावला में हमारे सेम आए, सांची आए, काफ़ी सारे एक्टर्स मतलब चीन के भारत लोग आए, इनका क्या प्रभाव रहेगा इस एनजीओ से जुड़कर, क्या वो किस तरह से काम करते हैं आपके साथ? ये शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी ये फील किया कि हिंदुस्तानी कल्चर जो डाइंग आउट हो रहा है, इसको क्यों ना हम बच्चों में एक सीड बोया जाए, आर्ट एप्रिसिएशन उनकी हो। तो इसलिए हमारे साथ ना सिर्फ जूही चावला के लेट बिरजू महाराज भी, पंडित बिरजू महाराज भी जुड़े हैं, और बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स के लेजेंड्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि वो ये अपना जो हिंदुस्तानी कल्चर हेरिटेज है वो बच्चों तक पहुंचा सकें। तो वो इससे बहुत फील करते हैं कि ये एक ऐसा काम हो रहा है, और वो भी फ्री में हो रहा है बच्चों को। ये उनकी ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने स्कूलों तक आप लोग का ये बनता है प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया, जिससे जो विरसा है, 2016 में हमने 50 स्कूलों के साथ शुरू किया था, और आज मोर देन 22,000 स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, रिमोटेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे साथ जुड़े। क्या कुछ अपने प्रोजेक्ट्स आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू आ सकते हैं या आने वाले हैं, अगर बता सकें? अभी हमने नया काम जो शुरू किया है, हमने स्कूलों के अंदर इंटरैक्टिव पैनल लगाने शुरू किए हैं, जिससे अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। स्पेशली इन द रिमोट एरियाज टूल्स फॉर एजुकेशन बहुत कम है, तो हम जो रिमोट एरियाज हैं, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, जो दूर दराज के स्कूल्स हैं, उनके अंदर हम IFT पैनल्स लगा के उनको अंदर आर्ट एंड कल्चर की एप्लीकेशंस डाल के, और साथ ही साथ जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको भी उनको करके जिससे क्वालिटी एजुकेशन वो ले सकें, ये हमने मुहिम उठाया है इस साल से। और जो ये फंडिंग भी ली है उसको भी इसी स्कूल्स को अपडेट करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये फंडिंग इसलिए उसी मुहिम के दौरान ये भी काम उसी के साथ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।